ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کے دوران فرمایا، لوگوں، جس عورت میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں، لوگوں، جس عورت میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں، اس عورت سے شادی مت کرنا، اس عورت سے شادی نہ کرنا۔ خدا را جوانوں، جس عورت میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں، جس لڑکی میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں، اس لڑکی سے شادی ہرگز مت کرنا، اس لڑکی سے شادی ہرگز مت کرنا۔ فوراً دوری اختیار کر لینا، فوراً دوری اختیار کر لینا۔ یہ چار عیب رکھنے والی عورت اتنی خطرناک عورت ہے، اتنی خطرناک عورت ہے۔ فرمایا، جس راستے سے یہ آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، شادی کرنا تو دور کی بات، یہ عورت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ فرمایا، یہ چار عیب رکھنے والی عورت دنیا میں بھی جلیل اور آخرت میں بھی جلیل، دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ و برباد، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر تم ایسی عورت سے جڑے رہو گے، اگر تم ایسی عورت سے جڑے رہو گے، اگر تم ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے، اگر تم ایسی عورت کے ساتھ وابستہ رہو گے تو ایسی عورت خود جہنم میں جائے گی اور تمہیں بھی جہنم ساتھ لے کر جائے گی، اور تمہیں بھی جہنم ساتھ لے کر جائے گی، اور تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایسی عورت خود مصیبتوں میں گرفتار رہے گی، خود بھی طرح طرح کے پریشانیوں میں گرفتار رہے گی، اور تمہیں بھی مصیبتوں میں گرفتار کر ڈالے گی، اور تمہیں بھی مصیبتوں میں گرفتار کر ڈالے گی۔ ایسی عورت جس گھر میں چلی جائے تو گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، جس گھر میں چلی جاتی ہے، ایسی عورت جس گھر میں چلی جاتی ہے وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چار عیب رکھنے والی عورت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کے گود خالی ہونے لگتے ہیں۔ یہ عورت ماؤں سے بیٹے چھین لیتی ہے، ماؤں سے بچے چھین لیتی ہے، بیٹیوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بھائیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے چار خطرناک عیب ہے؟ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سے چار خطرناک عیب ہے جس سے میاں بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جس سے میاں بیوی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائیوں، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا، وہ فرماتے تھے جس عورت میں یہ چار عیب پائے جاتے ہوں، یہ چار چیزیں پائی جاتی ہو تو اس عورت سے شادی مت کرنا، اس عورت سے شادی مت کرنا۔ نمبر ایک، متکبر عورت، نمبر ایک، متکبر عورت یعنی تکبر کرنے والی عورت۔ فرمایا، لوگوں، تکبر کرنے والی عورت اللہ کو بھی ناپسند ہے اور اس کے رسول کو بھی ناپسند ہے۔ تکبر کرنے والی عورت اللہ کو بھی ناپسند ہے اور رسول کو بھی ناپسند ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے، وہ عورت اپنے شوہر کے سامنے
अपने हुस्न पे नाज करती है, अपनी जवानी पे नाज करती है, और अपने खूबसूरत बालों पे नाज करती है, अपने खूबसूरत हाथों पे नाज करती है, और वह दूसरी औरत से अलग थलग समझती है, खुद को दूसरी औरतों से ज़्यादा खूबसूरत समझती है। शौहर के सामने अकड़ के बात करती है, शौहर के सामने अकड़ के बात करती है। दूसरी औरत सलाम नहीं करती, दूसरी औरत सलाम नहीं करती। इस सोच की बुनियाद पे ये 2 टके की औरत है, इस सोच के बुनियाद पे ये 2 टके की औरत है, इससे सलाम क्यों करूं? अपने जवानी पे नाज करने वाली औरत, अपने हुस्न पे नाज करने वाली औरत, अपने शौहर के आगे मैं करने वाली औरत, ये ऐसी खतरनाक औरत है और मुतकब्बिर औरत है, जिस घर में चली जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है, जिस घर में चली जाए वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। खुदारा जवानों, ऐसी लड़की से शादी मत करना, खुदारा जवानों, ऐसी लड़की से शादी मत करना जो अपने हुस्न पे नाज करती है। उस लड़की से शादी मत करना जो अपनी जवानी पे नाज करती हो। ये मुतकब्बिर लड़की और मुतकब्बिर औरत जिस रास्ते से आ रही हो, जिस रास्ते से आ रही हो, शादी करना तो दूर की बात, शादी करना तो दूर की बात, उस रास्ते को भी छोड़ देना, उस रास्ते को भी छोड़ देना। फरमाया दूसरा ऐब ये है वालिदैन का नाफरमान बेटी, वालिदैन का नाफरमान बेटी, वालिदैन का नाफरमान औरत। हाय वो बुढ़ापा जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरियां लाद के दिन रात मजदूरी करता रहा और फिर और मजदूरी करता रहा, ओवर टाइम लगाता रहा, गुर्बत में आके बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद के अपनी बेटी को जवान किया, बूढ़ी कमर पे बोरियां लाद कर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया जवान किया। हाँ, इतनी कुर्बानियां देने वाले बाप की जो लड़की और जो औरत नाफरमानी करती है तो तेरी फरमाबरदारी कैसे करेगी, तेरे अहकामात की पैरवी कैसे करेगी? वह माँ कायनात का कुल मिलाकर दर्द एक तरफ, जब माँ बच्चा जनती है, बेटी जनती है, बेटा जनती है, इस लम्हे का जो दर्द है वो एक तरफ, इस लम्हे का जो दर्द है ज्यादा तकलीफ दे होता है। इतनी कुर्बानियां देने वाली माँ का जो लड़की नाफरमान है वो तेरी फरमाबरदारी कैसे करेगी, वो तेरी फरमाबरदारी कैसे करेगी? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिच्छू की पैदाइश दूसरे जानदारों से अलग होती है, दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होती है। जब सांप की पैदाइश का वक्त होता है तो अपनी माँ के पेट को खाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पेट फाड़ कर जंगल की तरफ दौड़ जाता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यही बात एक अक्लमंद शख्स को सुनाई। अक्लमंद शख्स ने कहा, हजरत इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, ऐसा ही होता होगा। वो अपनी माँ का पेट फाड़ कर चीर कर मार कर माँ को दुख देकर, माँ को दर्द देकर वो जंगल की तरफ भाग जाता होगा। उसने बचपन में माँ को तड़पाया, बचपन में माँ का पेट फाड़ा। जब बड़ा हो जाता है तो लोग उस सांप का पेट फाड़ते हैं। बचपन में जो अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक करता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो लोग उसके साथ वैसा ही सलूक करते हैं जैसा वो अपनी माँ के साथ किया रहता है, बचपन में किया करता है।
बचपन में किया करता था। बचपन में अपनी माँ की इज्जत नहीं की, बचपन में उसने अपनी माँ को मारा, तो आज हर शख्स उस सांप को मारने दौड़ता है, तो आज हर शख्स उस सांप को मारता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने सांप से पूछा, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने सांप से पूछा, तू सर्दी में बाहर क्यों नहीं निकलता, आखिर वजह क्या है? उसने कहा, सर्दी में तो बाहर मैं नहीं निकलता, तू ये बता गर्मियों में मेरी कौन सी इज्जत होती है, गर्मियों में मेरी कौन सी इज्जत होती है? तो बहरहाल बंदे को हर हाल में अपने हम जिन्सों को हर हाल में वफा करना चाहिए, हर हाल में वफा करनी चाहिए। जो किसी के साथ जैसा सलूक करता है उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। जवानों, अपने बूढ़े माँ बाप की सफ़ेद दाढ़ी का हया करो, इससे पहले कि जब तुम बूढ़े हो जाओ, इससे पहले जब तुम बूढ़े हो जाओ तुम्हारे सफ़ेद दाढ़ी का हया किया जाए, तुम्हारे सफ़ेद दाढ़ी का हया किया जाए। फरमाया इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिदैन के नाफरमान बेटी से हरगिज़ शादी मत करना, वालिदैन के नाफरमान बेटी से हरगिज़ शादी मत करना। फरमाया तीसरा ऐब यह है बेअदब औरत, तीसरा ऐब यह है बेअदब औरत। जो औरत अपने भाइयों का अदब नहीं करती, जो औरत अपनी माँ का अदब नहीं करती, जो औरत अपने बाप का अदब नहीं करती, वो तेरा अदब क्या करेगी, वो तेरा अदब क्या करेगी? ऐसी औरत से शादी मत करना जिसके पास अदब जैसी दौलत नहीं है, जिसके पास एहतराम जैसा खजाना नहीं है। अदब की बात आई तो हज़रत लुक़मान हकीम का वो जुमला याद आ गया। अदब की बात आई तो मुझे हज़रत लुक़मान हकीम का वो जुमला याद आ गया। किसी ने पूछा, हजरत आप अदब कहाँ से सीखा है? तो आपने फरमाया, मैंने बेअदब लोगों से अदब सीखा है, मैंने बेअदब लोगों से अदब सीखा है, मैंने अदब को बेअदब लोगों से सीखा है। पूछने वाले ने दरियाफ्त किया, हजरत वो कैसे? आपने फरमाया, जो काम बेअदब लोग करते हैं मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, जो काम बेअदब लोग करते हैं मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, जो काम बेअदब लोग करते हैं उन लोगों से परहेज करता हूँ। औरत में चौथा ऐब झूठ बोलने वाली औरत, झूठ बोलने वाली औरत। खुदारा झूठ बोलने वाली औरत से शादी न करना। इतनी सी बात सुनकर शौहर के सामने इतना बड़ा बनाकर पेश करती है, इतना बड़ा करके सुनाती है। झूठ बोलने वाली औरत जिस घर में डेरा डाल दे, माँ की गोद खाली होने लगती है, माँओं से बच्चे छीन लिए जाते हैं, माँओं से बेटे छीन लिए जाते हैं, बहनों का सुहाग छीन लिया जाता है, भाइयों में प्यार खत्म हो जाता है। खुदारा जवानों, जिस औरत के अंदर ये 4 ऐब पाए जाते हों तो भूल कर भी शादी मत करना। अगर तुम शादी कर ली तो याद रखना, दुनिया और आखिरत में जलीलो खार होकर रह जाओगे। याद रखना, अगर तुम शादी कर ली तो दुनिया और आखिरत में जलीलो खार होकर रह जाओगे।